Hello everyone, this is me Tuba and I'm going to discuss with you building materials. So building materials, as all of you know, holds a very strategic importance in your SSC JEE exams, okay? And it also is important for your A exams, and a little portion of it do comes in your GATE exam as well. So if I consider it as the main subject to be emphasized on, then its weightage is 20 to 25 marks in paper 1 of your SSC, and about 60 marks in your paper 2, that is a descriptive one. So we'll be discussing building materials soon, and first of all, I just want to give you a brief idea about what building materials is. As you all know, you must have seen that buildings traditionally also, and now modern buildings, all of them are made up of different kind of materials. So you know all these ancient buildings, they have been built and designed differently, and nowadays buildings are being designed and constructed in a different manner. So what is the difference between the two, and when did we go for the change, the innovation? The biggest innovation was obviously the invention of cement, which replaced the centuries old lime mortar mix. Okay, so what was the difference, why we choose cement over lime mortar? I'll be discussing all that, so let's begin our discussion. So what happened was that in ancient monuments, like आपने देखे भी होंगे, आप सब जगह गए भी होंगे, आपने टेम्पल्स, फोर्ट्स, सब चीज़ें देखी हैं, तो आपने देखा होगा कि उनकी दीवारें, उनके पिलर काफ़ी चौड़े होते हैं, आधे मीटर की कभी कभी दीवारें होती हैं उनकी, और बहुत ही उसमें मटेरियल लगा होता है. तो बेसिकली लाइम मोर्टार जो ट्रेडिशनल मिक्स होता था, उसमें उड़द की दाल, जैगरी, टोबैको, गम ऑफ द अकेशिया ट्री, और ये सारी चीज़ें उसमें मिक्स होती थी. तो वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता था कि आप देख सकते हैं कि आज तक वो अपने फुल स्प्लेंडर में खड़े हुए हैं. उनको वक्त का या उनको किसी भी नेचुरल कैलामिटी का ज़्यादा कोई असर फ़र्क पड़ा नहीं. यू कैन सी द मोन्यूमेंट स्टैंडिंग इवन टुडे. सो द थिंग इज़, then why do we need cement? Okay, so why do we need cement? When was cement invented? So cement is not a very old ingredient. Okay, Romans did make their own version of cement, but that's not our point right now. I have to discuss the cement which is being used even today. When was it discovered? It was discovered just 200 years ago, in around 1824 1825, by a mason called Joseph Aspidin. So who was Joseph Aspidin? जोसेफ एस्पेडिन एक मिस्त्री थे जो इंग्लैंड में एक जगह थी लीड्स, वहाँ पर काम कर रहे थे, और वहाँ उन्होंने उसको सीमेंट को अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू डिस्कवर किया. व्हाट ही डिड वाज, ही ग्राउंडेड सम स्टोन्स, पेस्ट बनाया, क्योर किया, वो हार्डन हुआ. सो नेचुरली ही गेव दिस पेटेंट एंड ही नेम्ड इट पोर्टलैंड सीमेंट. उसके बाद ये पोर्टलैंड सीमेंट जर्मनी ने भी अडॉप्ट किया, अपने तरीके से बनाया, मतलब सेम तरीके से ही बनाया, अपनी भी उसमें इनोवेशंस करी, यूएस ने करी, एंड देन फाइनली इंडिया में 1904 में साउथ इंडिया इंडस्ट्रीज़ ने सीमेंट को मैन्युफैक्चर किया. एंड नाउ इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीमेंट, एंड जस्ट आफ्टर 200 years it is the second largest producer in the world, and that is an achievement in itself. So that is what we should be proud of, that we are second largest producer of the cement in the world. So now this, you have to remember who invented the cement. So okay, before discussing about cement, I just want to name the traditional building materials, then we will come to that. So traditional building materials. So traditional building materials was your lime, mud, earth, clay, wood or timber, whatever you want to say, bamboo,
So basically any kind of resources available naturally was used traditionally to make houses in villages and extravagant monuments. And yes, the most important is your stones. So some of them are still used, some in villages, some in towns. So they are still in use, but lime has been lime has been replaced by cement in a huge way. So lime is a component of cement, but cement as a whole is the main component of the binding agent that we have today, which we call cement. Okay, so what are the artificial, man-made, or artificial or man-made? So that is cement, that is concrete, then we have bricks, okay, these are the man-made things, and along with them we obviously use the natural things as well, like timber. Lime is obviously a part of cement, and bamboo is also used, but we'll be discussing all of them one by one. Now with your exam point of view, the main important topics are cement, concrete and timber. Okay, I told you that 20-25 marks in paper 1 and around 60 descriptive thing. You have 60 marks from in your descriptive paper. So most of the questions come from these topics that you have to take care of. Okay, so we'll be discussing them one by one, and we'll discuss in their decreasing order of importance. So most important is cement. We'll be discussing cement first. So I told you Joseph Aspdin invented cement. So let's write his name. Let's give him the credit. Joseph Aspdin. Year in 1824-25. Place Leeds, UK. Now why did he call his patent Portland cement? Because after hardening, the color of this hardened substance resembled to the color of a sandstone which was found in a place called Portland in UK. Okay, so Joseph Aspdin named his patent, he attributed his patent's name to that stone which was found in the quarries of Portland. So hence we got what the world today knows as okay. So this is not the only type of cement. There are other types of cement. The constituents are more or less the same. The percentages vary. So we'll be discussing them one by one. But first of all, I'll be discussing the constituents of the ordinary Portland cement. So let's come to that. The most important one, like I told you, will always be calcium oxide. So lime basically. So it has to be in 60 to 65, or you can say 67%. Okay? This is the range. So what does lime do? Firstly, lime imparts ठीक है. लाइम इम्पार्ट स्ट्रेंथ का मतलब होता है रेजिस्टेंस टू ग्रेजुअल लोडिंग. ठीक है, ग्रेजुअल लोडिंग पर ही सब कुछ बेस्ड है, सारे स्ट्रक्चर ग्रेजुअल लोडिंग को एक्सपोज होते हैं, तो उनके लिए स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स में. सो वो काम लाइम करता है, और भी करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स, लाइम भी करता है, लाइम सबसे ज़्यादा करता है. ठीक है, अब क्या होता है, अगर
CaO की परसेंटेज इंक्रीज़ कर दूं तो क्या होगा? आपको पता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा भी है अपनी छोटी क्लासेस में कि लाइम जब पानी से रिएक्ट करता है तो स्लेकिंग होती है. स्लेकिंग इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव एंड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है और एक्सपैंड करता है बहुत ज़्यादा. तो जब एक्सपैंड करता है, सीमेंट के अंदर लाइम है, लाइम को पानी मिल गया, लाइम बहुत ज़्यादा है तो लाइम बहुत एक्सपैंड करेगा. तो सीमेंट का अपना जितना सेट होने वाला एरिया उसमें जब लाइम एक्सपैंड कर देगा तो क्या करेगा? फिर वो क्रैक्स इंड्यूस करेगा. क्रैक्स ठीक है, नॉर्मली क्रैक्स को इग्नोर कर देते हैं, नॉर्मली छोटे मोटे. बट अगर क्रैक्स इस लेवल पे पहुंच जाए कि डिज़ाइन स्ट्रेस को भी सरपास कर दे तो स्ट्रक्चर फेल हो जाता है. दिस इज़ द वर्स्ट सिनारियो. सो परसेंटेजेस आर अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ऑल दीज कॉन्स्टिट्यूएंट्स. ठीक है, अगर CaO कम हो तो क्या होगा? जल्दी सेट हो जाएगा, क्विक सेट हो जाएगा, जल्दी सेट हो जाएगा, सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा या हाइड्रेशन कर लेगा. तो जल्दी सेट हो जाएगा, श्रिंक कर देगा. ठीक है, second most important is सिलिका. ठीक है, सिलिका का भी मेन रोल है स्ट्रेंथ इम्पार्ट करना. तो लाइम और सिलिका दे आर द मेन स्ट्रेंथ इम्पार्टिंग सोर्सेज टू द सीमेंट. तो सिलिका की जो परसेंटेज है वो अराउंड 17 to 25% होनी चाहिए. अच्छा, सिलिका का रोल एक और है. सबसे पहले तो स्ट्रेंथ हो गया, दूसरा क्या है? इट इंक्रीजेस द सेटिंग टाइम. अब जो लोग थोड़ा भूल गए हैं या याद नहीं आ रहा या थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो सेटिंग टाइम क्या होता है? एक सेमी लिक्विड या सेमी सॉलिड फॉर्म में होती है स्लरी सीमेंट की. उसको जब हम प्लेस करते हैं विद टाइम वो हार्डन करती है. तो वो जो टाइम है उसके एक सेमी लिक्विड या सेमी सॉलिड फॉर्म से हार्डन स्टेट में जाने का, उसको हम सेटिंग टाइम कहते हैं. और इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि यही बेसिकली आपका ओवरऑल स्ट्रेंथ डिटरमिन करता है. अगर मैं सेटिंग टाइम इंक्रीज़ कर दूं तो टेक्निकली लिक्विड, सेमी लिक्विड, सेमी सॉलिड स्लरी को हार्ड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल. तो इसका क्या रीज़न है? इसका क्या इम्पैक्ट है? ऐसा क्यों करना है? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैनी क्वेश्चन अराइजेस. तो इसका आंसर ये है कि सेटिंग टाइम अगर सिलिका इंक्रीज़ करता है तो इट इज़ अ गुड थिंग. आपका टाइम इंक्रीज़ हो रहा है, इट इज़ अ गुड थिंग व्हेन योर casting plant is somewhere and when your batching plant is somewhere and your casting plant is somewhere. तो अगर आप सीमेंट रेडी मिक्स कंक्रीट में यूज़ कर रहे हो, आपको उसको सेट नहीं होने देना जब तक वो साइट पे ना पहुंच जाए. वो वर्केबल कंडीशन में रहना चाहिए, वो प्लेस होना चाहिए, कॉम्पैक्ट होना चाहिए, वो क्योर होना चाहिए. ठीक है, इतने टाइम तक उसने वर्केबल कंडीशन में रहना है. उसने अगर वो हार्ड हो गया तो आप उसका कुछ कर ही नहीं सकते. योर सीमेंट इज़ वेस्टेड. तो यहाँ हमको सेटिंग टाइम इंक्रीज़ करने का एडवांटेज है. दूसरा कहाँ है? डेजर्ट एरियाज़ में या गल्फ़ कंट्रीज़ में या बहुत ही हाई क्लाइमेट वाले एरियाज़ में धूप में आपने जो पानी सीमेंट में डाला वो तो इवेपोरेट कर जाएगा. क्या होगा? क्रैक्स आ जाएंगे, स्ट्रेंथ ही नहीं आएगी प्रॉपर जो आनी चाहिए. जितने टाइम में सेट होना चाहिए उतने टाइम में वो सेट ही नहीं होगा. जो 7 दिन में सेट होना था वो 2 दिन में हो जाएगा, जो 14 दिन में होना था वो 4 दिन में. मतलब टाइम जो है 7 डेज़ फिर 14 डेज़ जो आपका प्रॉपर क्योरिंग के बाद टाइम रहता है वो नहीं हो पाएगा, स्ट्रेंथ गेन नहीं हो पाएगी. तो आप क्या करते हो? सेटिंग टाइम बढ़ा देते हो. ठीक है, सेटिंग टाइम बढ़ाने से क्या होगा कि आपका जो सीमेंट है वो उतनी जल्दी हार्डन नहीं होगा.
सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं, और भी एग्जांपल्स होंगे, अभी मेरे माइंड में यही है, मैंने आपसे ये डिस्कस कर लिए हैं। तो ये सिलिका का रोल है, ठीक है। तो सिलिका को उस हिसाब से आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड है आपका एल्यूमिना। ओके, ये होता है आपका Al2O3 और ये आपकी होती है अराउंड 4 to 8%। एल्यूमिना का रोल है कि वो फ्लैश सेटिंग करा देता है, ठीक है। फ्लैश सेटिंग क्या होती है, आई विल डिस्कस। ये इंस्टेंट इनिशियल जो सेटिंग होती है सीमेंट की, इनिशियल सेटिंग एकदम फ्लैश में कराता है, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट डिज़ायरेबल एट ऑल। तो इसी वजह से हम जिप्सम ऐड करते हैं, ताकि ये वाली जो फ्लैश सेटिंग है वो ना हो। जिप्सम रिटार्ड करता है उसको, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कि कैसे करता है। तो एल्यूमिना जो है वो आपका क्विकन्स द अगर एल्यूमिना एक्सेस में है तो इट वीकन्स द सीमेंट, और एल्यूमिना जो है लोअर्स द क्लिंकरिंग टेम्परेचर। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं क्लिंकरिंग टेम्परेचर, ज़्यादा परेशान मत होइएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। सीमेंट बनता है कैलकेरियस और आर्गिलेशियस रॉक से, मैन्युफैक्चरिंग में बताऊंगी मैं आपको, अभी ब्रीफली बता रही हूँ। कैलकेरियस रॉक्स होते हैं जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट डोमिनेंट होता है, आर्गिलेशियस होता है जिसमें क्ले डोमिनेंट होता है। कैलकेरियस रॉक्स है जैसे आपका कैल्शियम कार्बोनेट, चौक, ठीक है, आपका सीमेंट रॉक, आपके शेल्स, ठीक है, ये सब आपके कैलकेरियस रॉक्स हो गए। आर्गिलेशियस हो गया आपका क्ले, शेल, स्लेट, ऐश एट्सेट्रा। इन पत्थरों को लेकर ग्राइंड किया जाता है, पहले तोड़ा जाता है, फिर ग्राइंड किया जाता है, फिर एक रोटरी किल्न में इनको फ्यूज़ किया जाता है, ठीक है। इनको पिघलाया जाता है, पिघलाकर जो पत्थर बनता है उन्हें क्लिंकर कहते हैं। उन क्लिंकर को फर्दर कूल करते हैं। अच्छा, क्लिंकर किस टेम्परेचर पे फॉर्म होते हैं, 1450 डिग्री पे फ्यूज़ होते हैं। ये 1300-1500 की रेंज में, बेसिकली 1450 डिग्री पर ये फ्यूज़ हो जाता है। तो फ्यूज़ होकर जो क्लिंकर बनता है उसको कूल करा के पाउडर फॉर्म में करते हैं, वो पाउडर सीमेंट कहलाता है। उसमें जिप्सम ऐड होता है। जिप्सम क्यों ऐड होता है, ताकि ये जो आपका एल्यूमिना क्विक सेटिंग करता है, फ्लैश सेटिंग करता है, जिप्सम उसे रिटार्ड करता है। अब आपने पाउडर बना लिया सीमेंट का, आप उसको सिलोज में स्टोर कर रहे हैं, ज़रा सा मॉइस्चर मिलेगा वो हार्ड हो जाएगा, ज़रा सी बारिश होगी, हवा में मॉइस्चर होगा, वो उसे ले लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, हार्ड हो जाएगा। तो जिप्सम उसको रिटार्ड करता है। सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ जिप्सम। तो क्लिंकरिंग टेम्परेचर का बेसिकली ये है कि लोअर द क्लिंकरिंग टेम्परेचर है, ठीक है, प्लांट की पावर के लिए अच्छा है, लेकिन ज़्यादा एल्यूमिना हो जाएगा तो क्वालिटी जो है उसकी ख़राब हो जाएगी, सीमेंट की वीक हो जाएगी क्वालिटी, उसकी स्ट्रेंथ वगैरह सारी चीज़ों पे अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो एल्यूमिना हो गया। एल्यूमिना के बाद क्या आया हमारा, जिप्सम। जिप्सम क्या है, CaSO4.2H2O। 2H2O इज़ इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसका भी रोल है, वो बताऊंगी मैं आपको। तो जिप्सम क्या करता है, फ्लैश सेटिंग को रिटार्ड करता है, सबसे इम्पोर्टेंट काम इसका यही है, ठीक है। एल्यूमिना कैसे करता है फ्लैश सेटिंग, को भी हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो ये जिप्सम का रोल हो गया, और इसकी परसेंटेज होती है आपकी, जिप्सम की परसेंटेज होती है 3 to 4%, ठीक है।
ये हो गया, ये नोट कर लीजिएगा परसेंटेज वगैरह सब चीज़ें। ठीक है, जिप्सम के बाद आता है आयरन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, कुछ भी कह लीजिए। थ्री टू 4% होता है ये भी। फिर इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, इट इम्पार्ट्स बेसिकली स्ट्रेंथ, हार्डनेस, कलर। ठीक है, ये इम्पार्ट करता है। तो इसकी ये इम्पोर्टेंस है, कैसे करता है वो भी बताएंगे। ठीक है, इसके बाद आता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या करता है, ये भी स्ट्रेंथ, कलर, हार्डनेस इम्पार्ट करता है। किसको? सीमेंट को। ठीक है, कैसे करता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। ऑल थिंग्स हैव अ रीज़न, नथिंग इज बेवजह, राइट। देन वी हैव alkalis. So alkalis is basically Na2O, पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। तो alkalis का क्या है, ये बहुत ही अनडिज़ायरेबल है। सॉरी 7 नंबर है ये सिर्फ 0.2 to 1% तक अलाउड हैं। और ये सबसे ज़्यादा जो गलत काम करते हैं वो ये करते हैं एफ्लोरेसेंस। ऐसा नहीं है कि ये डिज़ायरेबल हैं, ये बस हैं। ठीक है, दे आर दोज अनवांटेड एलिमेंट्स जो होते ही हैं किसी भी सोसाइटी में, कहीं पर भी जो अनवांटेड एलिमेंट्स हैं वो ये होते हैं। एल्कलीज जो है बेसिकली सीमेंट के अनवांटेड हैं, लेकिन ये क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम रॉक्स में प्रेजेंट हैं तो ये होते हैं, ये एफ्लोरेसेंस क्रिएट करते हैं। वाइट पानी के साथ एल्कलीज रिएक्ट करते हैं, वाइट प्रेसिपिटेट जैसा कुछ फॉर्म करता है। जो फ्रेशली सीमेंटेड दीवारें होती है उस पर एक वाइट पैच नज़र आता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस एफ्लोरेसेंस एक्शन, बिकॉज ऑफ alkalis reaction with water. So alkalis reaction with water causes efflorescence. Okay, secondly alkalis जो हैं एग्रीगेट के साथ एक एक्सपेंसिव रिएक्शन करते हैं। एल्कलीज एग्रीगेट के साथ एक्सपेंसिव रिएक्शन करते हैं, विच अगेन यू नो इट डिस्टॉर्ट्स द शेप ऑफ द सेट सीमेंट। ठीक है, तो एल्कलीज ये करते हैं, तो इसलिए इनकी, क्योंकि इनको आप हटा नहीं सकते हो, इनकी आपने परसेंटेज कंस्ट्रेन कर दी, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम रॉक्स में ही प्रेजेंट होते हैं। सिमिलरली आपका सल्फ़र है, सल्फ़र जो है ये भी अनडिज़ायरेबल है। सल्फ़र क्या करता है, सल्फ़र बहुत सारे कंपाउंड्स के साथ जो सीमेंट में फॉर्म होते हैं क्लिंकरिंग के टाइम, उनसे रिएक्ट कर कर एक्सपेंसिव जो कंडीशन होती है वो क्रिएट करता है। वो अगेन फिर क्रैक व्रैक फॉर्म करता है, तो बेसिकली साउंडनेस को इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, तो ये साउंडनेस को अफेक्ट करता है, सिलिका भी साउंडनेस को अफेक्ट करता है, ये भी साउंडनेस को अफेक्ट करता है। तो दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स दैट अफेक्ट द साउंडनेस, यानी कि वॉल्यूम चेंजेस होते हैं इसकी वजह से। ठीक है, तो वॉल्यूम चेंजेस ऑब्वियसली इट इज़ ठीक है, एक लिमिट तक परमिसिबल है, बट बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप एक शेप से आगे एक्सपैंड नहीं करा सकते अपने सेट हुए हुए बीम को या कॉलम को। अच्छा, तो this was all about the constituents. Now we are coming to another very important topic, before which I would like to give again that manufacturing का थोड़ा सा
जो था मैंने आपको बताया था कि क्लिंकरिंग होती है ना, तो क्लिंकरिंग में जो क्लिंकर्स होते हैं वो कैल्शियम मैग्नीशियम रॉक्स और ये सिलिका एल्यूमिना ये सारे मिक्स होके क्या कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। वो क्लिंकर जो है वो कुछ डिफरेंट कंपाउंड के बने हैं ना, इन सब कॉन्स्टिट्यूएंट को मिक्स करके क्या बना है, क्लिंकर किस चीज़ का बना हुआ है। तो बेसिकली वो जो प्रोडक्ट्स होते हैं दे हैव हाई एफिनिटी for water. So those compounds which are made during clinkering and they appear as clinkers, they have high affinity for water, they react with water and hydration reaction occurs, okay, and then the setting process of the cement starts. So they are responsible for the setting of the cement, and setting is the process of gradually attaining the strength of the cement. Okay, so let us study. So these compounds are very important and they are called Bogues compounds. So Bogues compounds मैंने बता दिया है कि बोग थे जिन्होंने उसको आइडेंटिफाई किया। अब लेट मी डिस्कस वन बाय वन द बोग्स कंपाउंड्स। सो नंबर 1 इज़ C3A। इसको हम बोलते हैं, ये तो रहा इसका फॉर्मूला, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ठीक है, ये हो गया। इसको ली शैटलियर ने सिलाइट भी बोला है। ठीक है, C3A, अब इसमें क्या है, एल्यूमिना है। मैंने क्या बताया था, क्विक सेटिंग करता है, फ्लैश सेटिंग करता है, ये करता है फ्लैश सेटिंग। ठीक है, तो इसको कौन रिटार्ड करता है, हु टेक्स केयर ऑफ इट, जिप्सम। कैसे, जो C3A के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिप्सम उसके चारों मतलब उसके अराउंड एक लेयर फॉर्म कर देता है, टेम्पररी लेयर होती है। जिप्सम का जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लॉस्ट हो जाता है। तो जैसे ही वाटर मिलता है सीमेंट को, जिप्सम सबसे पहले अपना हिस्सा लेने आ जाता है कि मेरा वाटर ऑफ हाइड्रेशन वापस करो। इतने में इसको टाइम नहीं मिलता वो इंस्टेंट रिएक्शन करने का। फिर जो टाइम चला जाता है, जिप्सम ने इसके हिस्से का पानी था वो अपने लिए ले लिया और इसको फिर अब नॉर्मली जैसे सब सेट होता है फिर ये वैसे सेट होता है। इसकी ये फ्लैश सेटिंग को बेसिकली जिप्सम रोक देता है, वरना अगर C3A को खुला छोड़ दे फ़ौरन के फ़ौरन पानी से रिएक्ट करके फ्लैश सेटिंग कर देगा, कोई पॉइंट नहीं है, फिर एकदम से सेटिंग हो जाएगी, हार्डनेस आएगी नहीं। ठीक है, सो ये सिलाइट का रोल है। और क्या करता है C3A, अच्छा वो टेम्पररी होता है तो हो सकता है थोड़ी बहुत फ्लैश सेटिंग ये कर भी दे अगर ये ज़्यादा हो तो। इसकी लिमिट क्या होती है, इसकी लिमिट होती है 4 से 14%। ठीक है, अच्छा और ये क्या करता है, सल्फ़र से रिएक्ट करके वही साउंडनेस को अफेक्ट करता है, कंपाउंड बनाता है जो एक्सपेंसिव नेचर के होते हैं, जो एक्सपैंड करते हैं। तो ये इसलिए ये जो है हार्मफुल इंग्रेडिएंट भी माना जाता है। दिस इज़ द क्वेश्चन विच इज़ आस्क्ड। आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि C3A जो है हार्मफुल इंग्रेडिएंट ऑफ द सीमेंट माना जाता है। ठीक है, तो ये C3A के बारे में हो गया। और हाँ, विद इन 24 आवर्स ये हाइड्रेट हो जाता है। दूसरा आता है हमारा दिस इज़ योर टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट। इसको ली शैटलियर बोलते हैं, जो ली शैटलियर थे वो बोलते थे इसको फेलाइट। ठीक है, ये भी फ्लैश सेटिंग करता है। ये भी सल्फ़र के साथ मिलकर
एक्सपैंड करता है, लेकिन क्योंकि इसमें आयरन प्रेजेंट है C3A के कंपैरिजन में कम नुकसान पहुंचाता है, तो ये बिल्कुल यूजलेस सा कंपाउंड है। इससे अगर इसको भी जिप्सम रिटार्ड करता है, तो इससे अगर फ़ायदा नहीं है तो बहुत ज़्यादा खतरा भी नहीं है, क्योंकि ये एक्सपेंसिव कंपाउंड भी ज़्यादा नहीं बना पाता, क्योंकि आयरन बनने नहीं देता, ठीक है, थोड़ा बहुत ही कर पाता है, और ये फ्लैश सेटिंग करता है तो वो जिप्सम टेक केयर कर लेता है। तो बेसिकली क्योंकि ये है तो है, इट इज़ लाइक फ़ायदे का नहीं है तो बहुत नुकसान का भी नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं एलुमिना वाले, ये ज़्यादा स्ट्रेंथ वगैरह कुछ खास इम्पार्ट नहीं करते। स्ट्रेंथ किसकी वजह से आती है वो मैं आपको बताती हूँ। अब आते हैं अब बहुत ही इम्पोर्टेंट वाला आपका कंपाउंड, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। तो दिस इज 3CaO.SiO2। तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट हो गया। अब इसमें क्या है कि ये जो है दोनों ही कमाल की चीज़ें हैं इसमें, ये लाइम भी है सिलिका भी है, दोनों ही क्या इम्पार्ट करती हैं, स्ट्रेंथ। सो मैक्सिमम स्ट्रेंथ किसकी वजह से आती है, ठीक है। दूसरी बात, अच्छा, रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमम स्ट्रेंथ है क्योंकि ऑब्वियसली ये दोनों हैं। अच्छा, अब आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि मैं आपको बाद में बताऊंगी कि आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या रोल है, वो कैसे स्ट्रेंथ इम्पार्ट करते हैं। तो इनडायरेक्टली स्ट्रेंथ इम्पार्ट करता है, कैसे, वो कैल्शियम और सिलिका को रिएक्ट कराने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ठीक है। तो इनका रोल यहाँ है, तो ऑब्वियसली ये स्ट्रेंथ इम्पार्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि चलिए स्ट्रेंथ इम्पार्ट हो गई। अब ये जो आपका C3S है, ये जब पानी से रिएक्ट करता है तो ये एक कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट जेल बनाता है। कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट जेल, थ्रोम्बोहाइड्राइड जेल भी कहते हैं इसको, और ये रिस्पॉन्सिबल है हार्डनेस के लिए जो प्रोड्यूस होती है, प्लस ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी रिलीज़ करता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या क्या करता है, बेसिसिटी इंक्रीज़ करता है, पीएच इंक्रीज़ हो जाती है सीमेंट की लगभग 13 के करीब। तो क्या फ़ायदा है उससे, दिस CaOH2 की वजह से रस्टिंग एंड करोजन नहीं होती, किसकी, स्टील बार्स की, ठीक है। तो ये क्योंकि पीएच बढ़ गया है, ठीक है, पीएच 13 हो जाता है सीमेंट का। ये C3S, तो ये अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रस्टिंग और करोजन प्रिवेंट करता है, किसकी, जो फिर कंक्रीट में बाद में माइल्ड स्टील बार्स लगते हैं तो सीमेंट से वो रिएक्ट करके, पानी वानी से रिएक्ट करके वो रस्ट नहीं करते। तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, तो और पॉइंट ये भी है, ये हाँ, फ्रीजिंग और थॉइंग, फ्रीजिंग और थॉइंग,
इसका पार्टिकल साइज़ बहुत कम होता है, ठीक है, बहुत कम होता है, बहुत माइन्यूट होता है। अब फ्रीजिंग और थॉइंग कहाँ से आ गया? जाहिर सी बात है यार, बर्फीले इलाके में बिल्डिंग बनाओगे तो पोर्स होंगे, पोर्स में पानी होगा, पानी होगा, पानी ठंडे टेम्परेचर की वजह से बर्फ़ बनेगा तो वो एक्सपैंड करेगा, ऑब्वियसली स्ट्रक्चर को हार्म पहुँचेगा। तो जब, लेकिन अगर आपका जो सीमेंट है वो इतना डेंस है, पार्टिकल साइज़ इतना स्मॉल है कि पोरोसिटी और परमिएबिलिटी जैसी चीज़ें वो नहीं होने देता अपने अंदर, तो जाहिर सी बात है वो फ्रीजिंग और थॉइंग के लिए भी रेजिस्टेंट होगा, ठीक है। जब पार्टिकल साइज़ बहुत स्मॉल है, डेंसिटी है, पोर्स नहीं है, परमिएबिलिटी नहीं है, तो पानी के जाने की जगह नहीं है, पानी के जाने की जगह नहीं है तो फिर पानी जब रहेगा ही नहीं तो फ्रीजिंग किस चीज़ की होगी, राइट। तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, रेजिस्टेंट टू फ्रीजिंग एंड थॉइंग। ओके, ये भी सल्फ़र के साथ थोड़ा बहुत रिएक्ट करता है, वो सब करते हैं थोड़ा थोड़ा, तो एक्सपेंशन थोड़ा बहुत परमिसिबल लिमिट में करते हैं सब। अच्छा, अब इसमें जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीज़ होता है वो पोरोसिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लीचिंग होती है, OPC में 20 to 30% लीचिंग होती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऊज कर जाता है, क्योंकि प्रेसिपिटेट होता है, ऊज कर जाता है, तो थोड़े बहुत पोर्स वो छोड़ देता है, तो दैट कैन बी टेकन केयर ऑफ बाय ग्राउटिंग एंड ऑल। तो ये चीज़ है। अब इसमें क्या है कि मेन स्ट्रेंथ इसने इम्पार्ट कर दी, इसने आपका रेजिस्टेंट टू फ्रीजिंग एंड थॉइंग भी हो गया, तो बेसिकली ये बहुत ज़्यादा आपका इम्पॉर्टेंट है। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये 7 दिन में स्ट्रेंथ गेन करता है, इनिशियल सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसकी जो हाइड्रेशन है वो 7 डेज़ में ये अपनी स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। तो जहाँ हमें जल्दी स्ट्रेंथ चाहिए वहाँ हम C3S इंक्रीज़ कर देंगे। C3S इंक्रीज़ करने का मतलब हमें स्ट्रेंथ कहाँ जल्दी चाहिए, कहाँ हम चाहते हैं जल्दी से 7 दिन के अंदर अंदर हमें काफ़ी स्ट्रेंथ मिल जाए, इसको अगर हम बढ़ा देंगे तो ऑब्वियसली स्ट्रेंथ मिल जाएगी। पेवमेंट कंस्ट्रक्शन, जहाँ ट्रैफिक जाता है वहाँ हमको जल्दी चाहते हैं कि सीमेंट हार्ड हो जाए, स्ट्रेंथ के साथ, स्ट्रेंथ भी गेन कर ले, हार्ड भी हो जाए, ताकि ट्रैफिक का फ्लो रुके नहीं, स्टार्ट हो जाए, ब्रिजेस पे एंड ऑल दैट। तो इसका ये एक कह सकते हैं एप्लीकेशन है इसकी सेटिंग टाइम का। तो दीज वर द पॉइंट्स आई वांटेड टू डिस्कस अबाउट C3S, और जो भी मैकेनिज़म्स थे आपको समझ में आ गए होंगे। लास्ट बोग्स कंपाउंड विच इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ डाई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है। इसको बिलाइट भी कहते हैं। अच्छा, जो C3S था ना उसको एलाइट कहते हैं, मैं बताना भूल गई, C3S को एलाइट कहते हैं। अच्छा, ये जो है ये अपनी स्ट्रेंथ गेन करने में, पूरी तरह से हाइड्रेट होने में ये 1 साल लगाता है, तो ये प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये, ठीक है। ये भी उसी तरह से CSH जेल बनाता है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ। बस अब यहाँ पर एक फ़र्क है कि ये जो है कंपेयर टू C3S ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बहुत कम रिलीज़ करता है, तो उससे क्या होता है, पोरोसिटी नहीं आती ज़्यादा, ठीक है, पोरोसिटी नहीं आती, ठीक है। वो डेंस था तो वो पोरोसिटी को कवर कर लेता था, थोड़ा बहुत वो होता था तो वो हम मैनेज कर सकते हैं, बट ओवरऑल वो डेंस था तो फ्रीजिंग थॉइंग कर लेता था, थोड़ी बहुत पोरोसिटी तो आपकी फिनिश हो सकती है। ये ऑलरेडी कमी रिलीज़ करता है ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर, 13 साल तक चलता ही रहता है ये स्ट्रेंथ गेन करने का प्रोसेस जो है किसी भी स्ट्रक्चर का, बल्कि चलता ही रहता है थोड़ा बहुत करके। तो इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से ये हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स के लिए बहुत फेवरेबल है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होने में बहुत टाइम लगता है, और बहुत टाइम इन द सेंस कि कंपैरेटिवली टाइम और स्ट्रक्चर से ज़्यादा लगता है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में, जैसे कि डैम्स, बैराज। तो ये बेसिकली हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स में इस चीज़ की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा होनी चाहिए,
वैसे आपके ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में ये कितना होता है, 15 से 35%। और मैं C3S का बताना आपको रह गया। C3S जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, वो होता है आपका 45 टू 65% और आपका C4AF जो था वो था 10 से 18%। C2S मैंने बता दिया 15 से 35%। और आपका इससे पहले क्या था, C3A, ये था आपका ये क्या था, हाँ 4 to 14%। तो ये इनकी परसेंटेजेस हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बता दी हैं। अब थोड़ा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ जल्दी से, कि बाइंडिंग स्ट्रेंथ, ठीक है, बाइंडिंग स्ट्रेंथ के अगर मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलूँ, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ कौन इम्पार्ट करेगा, C3S हमने डिस्कस कर लिया, फिर C2S, फिर C3A और फिर, ठीक है, ये ऑर्डर पूछे जाते हैं आपके, इसको प्लीज़ ध्यान रखिएगा। किसके लिए था ये, बाइंडिंग स्ट्रेंथ। उसके बाद अगर मैं रेट ऑफ हाइड्रेशन की बात करूं तो C3A एंड C4AF लगभग 24 घंटे में ही कर लेते हैं। कोई बुक में कि ये पहले करता है, ये पहले करता है, बट 24 घंटे में ही दोनों करते हैं। तो ये दोनों हैं। उसके बाद C3A इसको 7 डेज़ लगते हैं और बाद में आपका C2S है, उसको 1 ईयर लगता है, 7 to 14 डेज़ लगते हैं इसको। So this is your decreasing order of rate of hydration, that is your decreasing order of binding strength. So that's all for today, friends. If you like this lecture, do let me know about it and what else I can help you in the topics that you would like my help in. Do let me know. Please give me your valuable feedback, even if it is negative, I would appreciate it. Thanks a lot. Thank you so much.